friend. How are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant. I am MBA Finance, Sikkim Manipal University. Postgraduate Programming in Management, Finance, Cosmic Business School, New Delhi. Postgraduate Certificate in Management, All India Management Association, New Delhi. And Finance से पास आउट है. And PhD holder. My project, my PhD holder and management. My project डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस. इसमें बहुत सारे एनालिसिस पार्ट को डील किए हैं. डीमेट अकाउंट, प्रीफर्ड अकाउंट, जैसे ऑप्शन फ्यूचर बिजनेस, इंट्राडे बिजनेस, शेयर स्टॉक मार्केट एनालिसिस के बारे में प्रोजेक्ट एनालिसिस किए. आज जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो हम आपको बीएनएसएस के बारे में जिक्र कर रहे हैं. बीएनएसएस में प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड सेक्शन 478 से 496 हमें ये बताता है. प्रोविजन एज टू मीन्स के संबंध में, बेल एंड बॉन्ड सेक्शन 478 से 496 जिक्र करता है. बेल डिफिनेशन क्लोज में बेल को सेक्शन 21 के बी में डिफाइन करते हैं. सेक्शन 21 बी bail has been defined as introduced in the first time in the Sanhita. गुरुवक्स सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का यह मुकदमा है. इट वॉज हेल्ड एट बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट ग्रांट ऑफ बेल मीन्स टू sit and liberty a person arrested or imprisonment on security being taken for his appearance. In Moti Ram versus State of MP 1978, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट इट इज प्रोसेस टू सेट तय करता है ए पर्सन की लिबर्टी विच अंडर अरेस्ट और डिटेंशन बाय टेकिंग सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंसेस. Object: personal liberty is one of the most valuable fundamental rights given under the Constitution. The principle underlying the release on bail is that an accused is presumed innocent until proven guilty. A person released on bail is considered to be in constructive custody of the court. सुनील फूलचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का यह मुकदमा है. when bail may be granted as a matter of right. केस गुड्डी कांति वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1978 का यह मुकदमा है. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड डेट निर्धारित किया. बेसिक रूल शुड बी बेल और जेल. बेसिक रूल शुड बी बेल या जेल. एक्सेप्शन accused under the circumstances suggesting accused where there are circumstantial feeling of the justice न्याय से भागना. possibility of repeating offences. in bail offence accused get bail as a matter of right, whereas जबकि in non violable offence the grant of bail is matter of discretion of court. नॉन वायलेबल ऑफेंस में ग्रांट ऑफ बेल यह कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है. वायलेबल ऑफेंस सेक्शन 478 का क्लोज 1 हमें डील करता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में. लेट्स डाउन दैट वेयर ए पर्सन एक्यूज ऑफ बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन विदाउट वारंट, एपियर इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट एंड इज प्रिपेयर टू गिव बेल द पुलिस ऑफिसर फॉर द कोर्ट हैविंग कस्टडी of such person shall release him bail. The police officer या court instead was capable taking bail from such person may even release him on executing a bond. Hence, in bailable offence, accused can be released both by the court and by the police officer. Maximum period of detention. 479 section हमें बताता है maximum period of detention trial. 479 Section 479 provides that if a person not accused for an offence carrying death penalty या life imprisonment during the period of investigation, inquiry
or trial has undergone detention for a period of exceeding up to one half of the maximum period of imprisonment specified for the offence under the law. He under the law he shall be released by the court on his personal bond with without security. First proviso to section 479 provide that where such person is first time offender who has been convicted for any offence any past, he shall be released bond by the court. When investigation is not completed with prescribed period, टू का वन या एल, टू का वन और एल में बताता है इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 2 का 1 का एल इन्वेस्टिगेशन के बारे में जिक्र करता है। सेक्शन 187 का क्लोज 3 हमें बताता है प्रोवाइड डेट वेयर द पर्सन इज इन कस्टडी एंड द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट द कंप्लीटेड विदिन 90 days वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years। जो भी इन्वेस्टिगेशन जो 90 डेज का जो होता है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस में वो 10 साल से ऊपर का जो होगा उसमें 90 डेज का इन्वेस्टिगेशन होता है। 90 डेज के अंदर अगर पुलिस को चार्जशीट दाखिल कर देना है यदि इसके ऊपर किसी व्यक्ति का ऑफेंस है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है या चाहे डेथ सेंटेंस का है, चाहे वो 10 साल का सज़ा से संबंधित जो ऑफेंस है वो उसमें 90 दिन का पुलिस 90 दिन का कस्टडी होता है, जिसमें 90 दिन में जुडिशियल कस्टडी होता है। 90 दिन के अंदर आपको चार्जशीट पुलिस को दाखिल कर देना है, उसका ऑफेंस दाखिल कर देना है। सेक्शन 187(3) बताता है 60 डेज वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू एनी ऑफेंस टू एनी अदर ऑफेंस। 60 डेज का मतलब है जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, डेथ इम्प्रिजनमेंट नहीं है या 10 साल से कम का सज़ा है, उसमें 60 डेज का जुडिशियल कस्टडी दिया जाता है। 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट दाखिल इन्वेस्टिगेशन के दौरान 60 दिन के अंदर उससे पुलिस को चार्जशीट दाखिल कर देना है एक्यूज के अगेंस्ट में। यदि वह चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाता है तो जज प्रिसाइडिंग अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मजिस्ट्रेट उसे बेल दे सकता है या उसे एक्विटल कर सकता है या बरी कर सकता है और उससे कन्विक्शन भी कर सकता है। यदि ऑफेंस साबित हो जाता है तो उसे कन्विक्ट भी कर सकता है और यदि ऑफेंस साबित नहीं हो कर पाती है पुलिस तो वह उसे एक्विटल भी कर सकता है, बरी भी कर सकता है। 60 डेज वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू एनी ऑफेंस टू एनी अदर ऑफेंस देन पर्सन इज इंटाइटल्ड टू गेट बेल, और इसके लिए पर्सन इंटाइटल हो जाता है बेल के लिए एज मैटर ऑफ राइट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। दे शुड बी रेडी टू फर्निश्ड बेल एंड एग्री टू कंडीशन टू बेल। एवरी पर्सन रिलीज अंडर द सेक्शन 187 का क्लॉज 3 शैल बी डिमांड टू बी रिलीज अंडर चैप्टर 35 relating to bail sanita where the trial is not over within the prescribed period। section 480 का clause 6 provide that करता है provide that if the case is triable means विचारणीय by the magistrate and the trial of any person accused of non-violable offence is not concluded within the period of 60 days from the first date of fixed for taking evidence, then such accused shall, if he is in custody for an whole of period, be released bail unless the magistrate direct bail in non-violable offence 480 सेक्शन 480 हमें डिस्कस करता है। सेक्शन 480 BNSS provide for the provision relating to the grant of bail in non-violable cases। It lays down that when any person and accused of suspected the commission of any non-violable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of police station or appears brought before the court other than high court, court of session के अलावा, कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा, ये एक्सेप्ट मीन्स के अलावा ही मे बी रिलीज ऑन बेल। Provision is applicable to the court other than High Court or Court of Session. Therefore, it can be said that Section 480 BNSS of applicable to be magistrate court। Section 482 में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन होता है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि जब आप अरेस्ट होने की आशंका होती है आपके कि हमको पुलिस अरेस्ट कर लेगी
तो इस सिचुएशन में आपको पुलिस से बचने के लिए, अरेस्ट से बचने के लिए आप का एंटिसिपेटरी बेल का सहारा लेते हैं। जो सेक्शन 482 में एप्रीहेंशन मीन्स आशंका, एप्रीहेंशन मीन्स क्या होता है, आशंका। 482 डील्स विथ द प्रोविजन रिलेटिंग एंटिसिपेटरी बेल, इट इम्पावर हाई कोर्ट। इसमें एंटिसिपेटरी बेल का पावर जो दिया गया हुआ इम्पावर वो हाई कोर्ट को दिया गया है एंड सेशन कोर्ट को। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जो है एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने के लिए एलिजिबल है, एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करती है। द एंटिसिपेटरी बेल हैज़ नॉट बीन डिफाइन इन सनिता, एंटिसिपेटरी बेल जो है बीएनएसएस सनिता में डिफाइन नहीं किया गया। द बेल इज ग्रांटेड इन एंटिसिपेटरी, बेल इज ग्रांटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट। इसका मतलब बेल जो ग्रांट होता है वो अरेस्ट होने का मुझे आशंका है। व्हेन एन एंटिसिपेटरी बेल ग्रांटेड, देन इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट द पर्सन arrested in release on bail. Only after the arrested the order guaranteeing anticipatory bail become operative. यूनियन ऑफ इंडिया पदम नारायण 2008 का मुकदमा है। हु कैन ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल and when it can be granted, who can? According to section 482, High Court and Court of Session can be granted the person applying for grant of anticipatory bail. हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में सेक्शन 482 में कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक्यूज अपने बेल के लिए ग्रांट कर सकता है। मस्ट हैव रीजन टू बिलीव, उसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा। दैट ही मे बी अरेस्टेड, सच रीजन मस्ट बी फाउंडेड। अ रीजनेबल ग्राउंड, इट इज शुड नॉट बी मेयर फेयर। आपका रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। डर से यदि आप कोई भी चीज़ दे रहे हैं एंटिसिपेटरी बेल, आपको डर है कि भाई पुलिस अरेस्ट कर लेगी, वो डर से नहीं, आपको रीजन होना चाहिए, रीजनेबल सस्पेक्ट होना चाहिए। एंटिसिपेटरी ऑफ सच अरेस्ट मस्ट एंटिसिपेशन बी इन द रिस्पेक्ट ऑफ नॉन वायलेबल ऑफेंस, इट इज ए immaterial whether the offence is cautionable and non-cautionable is also irrelevant, whether or any other law, high court or court of session may it think fit, high court या court of session यदि सही समझता है, think fit direct that in event of such arrest the person who has applied for anticipatory bail shall be released on bail। और इस प्रकार से जब हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस ठीक समझ लेता है कि नहीं इस व्यक्ति को बेल पे रिलीज किया जाएगा, तो वो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर देता है। चेंजेस इंट्रोड्यूस CRPC 438 बीएनएसएस एंड 40 बेल विद इन कंडीशन सेक्शन 480 480 का 480 का क्लॉज 3 प्रोवाइडेड वेयर ए पर्सन एक्यूज एन ऑफेंस पनिशेबल विथ imprisonment which may extended to 7 years या more या of offense under chapter 6, chapter 7 and chapter 70 of BNSS or abatement conspiracy, abatement uksana, conspiracy means sudden attempt to commit and such offense is released on bail, the court shall impose the condition that such person shall attended in accordance with condition of conditions। पहला that such person shall attend in accordance with condition of the bond। B point such person shall not commit offence similarly to offence which he is accused। That such person shall not be indirectly make an inducement, threat and promise to any person acquainted with the fact of the case, tamper with the evidence। The court may also such other conditions as of think fit। Power of High Court and the Session Court। Power of High Court और Session Court का पावर क्या है? Section 483 provides power of High Court and Session Court to release the accused and bail। It also in power then to impose condition while means के दौरान of the offence is of the nature specified in section 480 clause 3। It is also in powers modified set aside the conditions imposed by the magistrate at the time of release the accused the bail। Release accused the bail
if the cases is exclusively triable by the court of session. एक्सक्लूसिवली मीन्स में विस्तृत, ट्राइबल में विचारणीय, कोर्ट सेशन, पनिशेबल विद इन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन बिफोर रिलीज द एक्यूज्ड ऑन बेल शैल इशू ए नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वो नोटिस इशू करेगा बेल ग्रांट करने के लिए, बेल को इशू करने के लिए। इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स हो गया सरकारी वकील, जैसे अभियोजन पदाधिकारी होता है, जिससे आप एपीओ का एग्जाम देते हैं। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो सरकारी वकील होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है उसको कौन अपॉइंटमेंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करता है। यदि आप 10 साल वकालत कर लिए, एडवोकेसी कर लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, कि आप डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन वो सैलरी डिसाइड नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अपॉइंटमेंट होता है। जितना केस यदि आप लड़ेंगे उतना आपका अमाउंट बनता है। लेकिन जो एपीओ का एग्ज़ाम होता है, जैसे बीपीएससी कंडक्ट करती है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या चाहे यूपीएससी, तो इसके थ्रू यदि आप जाते हैं तो आप अभियोजन पदाधिकारी बनते हैं। इसमें आप सरकारी वकील का पोस्ट मिलता है और आप क्रिमिनल केस में एलिजिबल होते हैं। अभियोजन पदाधिकारी जो होता है क्रिमिनल केस को देखता है, वो सिविल मैटर को नहीं देखता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है, आप जब भी केस फाइल करते हैं क्रिमिनल केस में, तो स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि यह स्टेट का क्रिमिनल क्या है, सोसाइटी ऑफ लार्ज है, माने सोसाइटी को इफेक्ट करता है, इसलिए वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसको डील करता है। इन शेयर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन एक्यूज आफ्टर withdrawing his bail application before the High Court can file subsequent bail application before the section court cancellation of bail. If the person released on bail tries to interfere in the conduct of the investigation, inquiry or trial, tries to violate means उल्लंघन करना, the condition of bail, then the such circumstances bail may be cancelled. सुप्रीम कोर्ट केस इन स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्सेस संजय गांधी 1978 held that the rejection in bail when the bail is applied in one thing and cancellation is bail is another. It easier means आसानी to rejected a bail in non-violable case than to cancel the bail. Once granted, cancellation is bail involves reviewing the earlier decisions while granted. सेक्शन 480 क्लोज 5 बताता है empower the court consideration for cancellation of bail. सुप्रीम कोर्ट इन रघुवीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986 let down the following circumstances where bail can be cancelled: hampers investigation, tampers with evidence, commits and perceived absconds those bond control of sureties, misuse liberty granted to him, misuse liberty granted to him. 485 से 496 तक के बाद आपको चैप्टर 35 453 से लेकर 477 एग्जीक्यूशन सस्पेंशन, एग्जीक्यूशन सस्पेंशन, रिमिशन, कम्युनिकेशंस ऑफ सेंटेंस। 453 से 477 तक चैप्टर 34 डील करता है। दिस चैप्टर रेफर टू द फ्लोइंग: पार्ट 1 एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, पार्ट 2 सर्कमस्टांसेज इन विच अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन सस्पेंड, रिमिट मीन्स माफ करना, कम्युनेंट द सेंटेंस सजा, कम्युनेंट ए डिक्लेरेशन ऑफ कोर्ट पार्ट 1 रेफर द फ्लोइंग सेंटेंस विच आर द फॉलो दैट सेंटेंस। सेक्शन 453 से 456 डेथ सेंटेंस जो है बीएनएसएस की धारा 453 से लेकर 456 तक डेथ सेंटेंस को जिक्र करता है। इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास को 457 से लेकर 466 तक इम्प्रिजनमेंट कारावास को माने डील करता है। लीवी मीन्स उगाही, वसूली और फाइन 461 से लेकर 464 में लीवी और फाइन के बारे में जिक्र करता है। जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन सेक्शन 465 से 469 डेथ सेंटेंस, 453 से 456 डेथ सेंटेंस के बारे में जिक्र करता है। सेक्शन 453 empower the court of session to execute any order passed by the high court.
सेक्शन 454 हमें बताता है इम्पावर द कोर्ट ऑफ सेशन टू एक्सिक्यूट द डेथ सेंटेंस पास बाय हाई कोर्ट इन अपील इन रिवीजन बाय इशू ए वारंट। सेक्शन 455 बीएनएसएस डील करता है रिलेट्स टू द पोस्टपोनमेंट postponement of execution of death sentence where an appeal is preferred to the Supreme Court. Section 456 डील करता है empower the high court, हाई कोर्ट इम्पावर मीन्स अधिकार देना या सशक्त करना हाई कोर्ट को टू communicate the death sentence of a pursuant movement to the imprisonment for life। नली केस के केस में बताएगा 457 से 466 इम्प्रिजनमेंट के बारे में। 457 पावर टू स्टेट गवर्नमेंट को इम्पावर्ड है टू डायरेक्ट व्हाट प्लेस एनी पर्सन लाइबल टू बी इम्प्रिजनमेंट एंड कमिटेड टू कस्टडी अंडर दिस संहिता शैल बी कन्फाइन मीन्स कैद करना। 458 सेक्शन बताता है प्रोवाइड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 459 डील करता है प्रोवाइड फॉर द डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन मीन्स निष्पादन के लिए वारंट का डायरेक्शन के लिए प्रोवाइड करना। 460 बीएनएस बताता है प्रोवाइड डेट व्हेन द प्राइजनर मीन्स जेल is to be confined in a jail, the warrant shall lodge with the jailer। Levy of fine सेक्शन 461 से 464 डील करता है। 461 प्रोवाइडेड करता है व्हेन एनी ऑफेंस हैज बीन सेंटेंस टू पे ए फाइन द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस में टेक एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ ए फाइन इन आइदर और बोथ द फॉलोइंग वेज। issue of warrant for the levy of the amount by attachment and sale of any movable property belonging to an offender, issue of a warrant to the collector of district authority him to release the amount of arrest of land revenue from the movable or immovable property of both of the default। 468 सेक्शन डिवाइड करता है प्रोवाइड फॉर इफेक्ट ऑफ वारंट इशू है अंडर सेक्शन 461 क्लॉज 1 का ए वारंट इशू बाय एनी कोर्ट may be executed within the local jurisdiction of such court। It authorizes the attachment and sale of such properties outside such jurisdictions when it introduced endorsed by the district magistrate within whose local jurisdictions such property is found। Section 463 provides for the warrant for levy of fine issued by a court in any territory। Section 464 deals with the suspension of execution of sentence of imprisonment। पार्ट 1 का डी 465 से लेकर 471 जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग द एक्सक्यूशन। सेक्शन 465 से 471 सेक्शन 465 provided every warrant for the execution of a sentence may be issued either by the judge या magistrate who passed the sentence by his successor में पद संभालने in office। सेक्शन 466 provide for the sentence of on escape means भाग जाना convicted when to take effect if the sentence is severed in kind then the sentence which such convicted was undergoing the new sentence shall take effect immediately। In case of the server sentence of a escape means भाग जाना convicted a new sentence will take effect immediately under section 466 BNSL। Section 467 BNS provide for sentence on offender already sentenced for another offense। The general rule is that a sentence commences means प्रारंभ करना from the time it is passed। This section creates and the exception and it provides that an sentence which it is first passed and which the accused is undergoing under means में गुजरा must be given in effect to the first। तो फर्स्ट 468 सेक्शन सेट ऑफ के बारे में जिक्र करता है। 470 सेक्शन BNSS प्रोवाइड फॉर द रिटेन ऑफ वारंट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। 471 सेक्शन प्रोवाइड फॉर मनी ऑर्डर
टू बी पेड रिकवरेबल एज फाइन, सस्पेंशन, रिवीजन अंडर कम्युनिकेशन सेंटेंस। अगले वीडियो में आपको जिस करेंगे सस्पेंशन रिवीजन एनी कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस, सेक्शन 472 से लेकर 477 BNSS के बारे में जिक्र करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स ऑल।